ತುಮಕೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ, ಈ ಪಕ್ಷದ ದಿಗ್ಗಜ ಮಹಿಳೆ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು, ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ವಜ್ರಕಾಯದ ವಜ್ರದಂತ ಮಹಿಳೆ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. डॉक्टर नौहरा शेख हो, मैं वेलकम करती हूं तुमकुर की सब जनता की तरफ से. वेलकम टू द दयास मैडम. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಜ್ರದ ಹೊಳಪು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ. ಹಸಿರೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಧ್ಯೇಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಿಸಸ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ತುಮಕೂರಿನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉದಯವಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಜ್ರದ ಹೊಳಪನ್ನ ಬೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಖಾತ್ರಿಗಾಗಿ, ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ. ಈ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನೌಹೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, 9 ವಜ್ರಗಳು. ಅಂದಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಜ್ರಕಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಬಲೀಕರಣ,
ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ, ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೌಹೀರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ನೌಹೀರಾಜಿ ಅವರು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರವರೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಹೀರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೀರಾಗಿರಬಹುದು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬಂಗಾರ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬರೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವದವರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಳ ಹಾಗೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ರಾಣಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಹೀರಾ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ MEPಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಅವರನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ MEP ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಅವರನ್ನ, ಹಾಗೇನೆ MEPಯ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರಂಜನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಥದ 2 ಗಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನವಾಗಿ ದುಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಉಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಭೇದ ಭಾವ್ ಜುಲ್ಮ ಮಿಟಾಯೆಂಗೆ, ದುನಿಯಾ ನೈ ಬನಾಯೆಂಗೆ, ನೈ ಹೈ ಡಗರ್ ನೈ ಹೈ ಸಫರ್, ಅಬ್ ಹಮ್ ನಾರಿ ಆಗೆ ಹಿ ಬಡ್ತೆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ ನೌಹೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವಾಗ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ದಿಗ್ಗಜರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮೇಡಮ್ ಶಬಾನಾ ಜಿ ಆಪ್ ಕೃಪಯಾ ಮಂಚ್ ಪರ್ ಆ ಜಾಯಿಯೇ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ MEPಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ವಜ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಸ್ಮ ಆಗೋದೇ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತಹದ್ದು ವಜ್ರ. ಆ ವಜ್ರವನ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಹೊಳಪು ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ MEPಯ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಉಳಿಪೆಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ
ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ವಜ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀವುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MEP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂದರೆ ಇವರ ಗುರುತು ಒಂದು ವಜ್ರ. ನಾನು ಗುರುತು ವಜ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಜ್ರ ಇದೆ, ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಸತತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಆಪ ಅಂತ ಮಶಹೂರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನಹಿರಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಜ್ರ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಜ್ರದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಸತತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ. ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈ ವಜ್ರ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಜ್ರ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಈ ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ವಜ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಈ ವಜ್ರವನ್ನು ಈ ವಜ್ರದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಉರ್ದುವಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 60 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರೇ, ದಲಿತರೇ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋರು. ಯಾವಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮಬಾಳ್ವೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಇದು ಒಂದೇ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರು ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಏಳುವ ಮುಂಚೆ, ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಏಳುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೀತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. తెలుగులో నన్ను 2 మాటలు ಹೇಳ್ತೀನಿ. 60 ఏళ్ల నుంచి మనకి ముందు పిలిచారు. మైనారిటీస్ ఎక్కడున్నారు ముందు రండి, దళితులు ఎక్కడున్నారు ముందు రండి, పిలిచేది ఆయనాక మేము ఓటు వేసినాక మనకి మళ్ళా వాళ్ళు చెప్పేది మీరు వెనక్కి పోండి, మేము ముందు పోతాం. అది ఇప్పుడు నడిచేలే. యాలంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది, ఇప్పుడు పేపర్లు ఉన్నాయి, ప్రెస్లు ఉన్నాయి. దానికోసం మీ ఆటలు ఇప్పుడు నడిచేలే. దానికోసం మేము ఇక్కడ ఒక వజ్రాన్ని తీసుకొచ్చినాము. ఈ వజ్రంలో వచ్చే వెలుపుని మీ ఇంటికి తీసుకుపోండి మేము చెప్పేకి వేదికలో నేను ఇష్టపడుతున్నాను. యాలంటే 60 ఏళ్ల నుంచి ఒకప్పుడు మన పెద్దోళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, పాంబులో వజ్రం ఉంది అని. 60 ఏళ్ల నుంచి ఆ వజ్రం కనపడలే. పాంబులో వజ్రం ఉంది అని చెప్పేవారు. కానీ 60 ఏళ్ల నుంచి ఆ వజ్రం కనపడలే ఎవరికి. ఇప్పుడు పాంబు ఆ వజ్రాన్ని బయటేసింది. ఆ ఎలుపుని మీ ఇంటికి తీసుకోమండి నేను చెప్తున్నాను.
ఎలాంటి ఈ వేదికలో నుంచి వచ్చిండే మా తల్లి ఆపగారు నవీరా షేక్ గారు వాళ్ళ ఇంటి కోసం ఇది చేస్తుండే, వాళ్ళకేమో తక్కువలే ఇంటి కోసం చేసుకునే దానికి, వాళ్ళ వంశానికి చేసుకునే దానికి వాళ్ళకేమి పట్టిండ్లే, వాళ్ళు వచ్చిండేది మాత్రము మీకోసమని చెప్పేకి నేను ఈ సందర్భంలో ఇష్టపడుతున్నాను. ప్రజలారా, మీరేమన్నా మీ పిల్లలకి వచ్చే మీ పీಳಿಗೆకి ఏమన్నా మంచిది కావాలంటే మీరు ఈ ఎలుపుని తీసుకుపోయి ఇంట్లో పెట్టుకోవాలా. ఇంట్లో పెట్టుకోలేదే కాదు, ఇప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో అది విధానసభ ఎన్నికలు కావచ్చు, లోక్సభ ఎన్నికలు కావచ్చు, మీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు కావచ్చు, దాంట్లో ఈ వజ్రాన్ని మీ ఇంటి ముందర వేస్తే ఆ వజ్రాది ఏం ఎలుపు వస్తుందో ఆ ఎలుపులో మీ అంతా జీవనం సార్థకం వేసుకోవచ్చని చెప్పి ఈ సందర్భంలో చెప్పేకి ఇష్టపడుతున్నాను. ఇంకొక మాట చెప్తాను, ఎలాంటి నేను చెప్పకూడదు కానీ చెప్తున్నాను. నాకు చాలా మంది చెప్పరి, నాకు 8 నెలల నుంచి చాలా మంది చెప్పరి, వాళ్ళు షియా, వాళ్ళు ఇది అది అని వాళ్ళు చెప్పరి, వాళ్ళు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పని చేస్తారా, అది చేస్తారా, ఇది చేస్తారా అని. దానికోసం నేను అందరికీ ఒకే మాట చెప్తే, ఢిల్లీలో కూకొని ఇడీ రాష్ట్రమంతా ఆళ్తారే, వాళ్ళేమో మీ ఇంట్లో ఉండరా? కాదు బాబు, వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండారు, మీరు మీ ఇంట్లోనే ఉండారు, కానీ మీ మీద వాళ్ళు హుకుమత్ చేస్తున్నారు. ఏంది చేస్తున్నారు? హుకుమత్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇది 60 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి బతికెక్కియండి, మేము ముందు వస్తాం, మాకే ముందు వచ్చెక్కియండి. యాలంటే ఇప్పుడు మైనార్టిజం బ్యాక్వర్డ్ వాళ్ళు అని మాకు బ్యాక్ తప్పుతుండారు, కానీ మాకు ముందు వచ్చి మీరు మాట్లాడండి, మీ అవాళ్ళని ఏముంది చెప్పండి అని ఎవరు చెప్తుండలేదు. అది చెప్పుతా ఉంది అంటే ఈసారి నేను చెప్పేకి ఇష్టం పడుతున్నాను. అది మా తల్లి వేదిక ముందు కూర్చొని నవీరా షేక్ గారు చెప్తున్నారని చెప్పేకి ఈ సందర్భంలో ఇష్టపడుతున్నాను. ఇంత మాత్రం చెప్పేకి నాకు అవకాశం చేసి ఇచ్చిన నవీరా షేక్ గారికి కావచ్చు, వాళ్ళ టీంకి కావచ్చు, వాళ్ళ సైన్యానికి కావచ్చు, కానీ ఫస్ట్ మీరు కావచ్చు నాకు ఇంత మాత్రం చెప్పేకి ఇచ్చినారే, మీకు అందరికీ నేను దండాలు పెట్టు. జై హింద్, జై కర్ణాటక మాట అని చెప్తున్నా. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬಾನಾ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. सबको अस्सलाम वालेकुम అండ్ నమస్కారం. ఈరోజు ఎంఈపీ పార్టీకి విచ్చేసిన స్టేజ్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ, అలాగే నవీరా షేక్ అక్క గారికి, అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రజలకి, మహిళలకి అండ్ మా అన్న తమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెలు ప్రతి ఒక్కరికి నా ఒక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఎంఈపీ పార్టీ దేనికోసం తీసుకుని వచ్చినారంటే, లేడీస్ అనేది చాలా ముఖ్యము. ఇంటికి కానీ ప్రతి ఒక్క చాట జస్ట్ 5 minutes మీరు ఇది కానీ విన్నారనుకోండి, బట్ మా స్పీచ్ అలాగే మా నవీరా షేక్ గారు వాళ్ళ స్పీచ్ కానీ విన్నారంటే దీని గురించి ఏమనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఈ ఎంఈపీ పార్టీ మీకోసం అండి ఇది ముందుకు తీసుకొని వచ్చిండేది. ప్రతి ఒక్క మహిళ ఎవరు కానీ కష్టపడకూడదు, ప్రతి ఒక్కరు కానీ ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలనేసి, దాంతోపాటు అలాగే పేదరికంకి దూరం చేయాలనేసి. ఈ పేదరికం అనేది మనిషికి చాలా హింసిస్తుంది. బట్ ఈ పేదరికం ఎలా పోగొట్టుకోవాలంటే, ఒకటి మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ ద్వారా మనం పోగొట్టుకోగలుగుతాము. దీనికి ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలనేసి తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే అక్క అయితే ప్రతి మహిళ కోసము 20 సంవత్సరాల నుంచి ఆమె కష్టపడుతూనే ఉంది. కష్టపడుతూ దాంతో అలాగే ఈ పార్టీ ఆమె ముందుకు తీసుకొని వచ్చి మీకోసం అనేసి ఇంత దూరం వచ్చి ప్రతి ఒక్క పని చేస్తున్నారు. అలాగే దాంతోపాటు మీరందరూ మహిళ ఎంతవరకు ఇంట్లో కష్టం అనేది చేస్తున్నారు అందరికీ తెలుస్తూ ఉంది. బట్ ఆ కష్టం అనేది దూరం పోవటం లేదు.
ఈ మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ కానీ ఒకసారి మూవ్ అయిపోయింది, ఇది వెనక అడుగు వేసేది కాదు, ముందు అడుగుతోనే సాధిస్తుంది. అలాగే మీరందరూ దీనికి గుర్తు పెట్టుకొని ఒక మహిళ అంటే ఒక హీరా అనేసి మా భాషలో తెలుస్తారు, అలాగే ఇంగ్లీష్లో డైమండ్ అంటారు. ఈ డైమండ్ అనేది ఎవరంటే ఒక మహిళనే. దీనికి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తు పెట్టుకొని ఈ మహిళా ఎంపవర్మెంట్ పార్టీ ముందుకు సాగించాలనేసి కోరుతూ మీకు అందరికీ సెలవు తీసుకున్నానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದವಾಗ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಬಲ್ಯತೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಸೋದರಿಯಾಗಿ, ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ನಿನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಇಂದಿನ ವಜ್ರ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಈ ಒಂದು MEP ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವಹೀರಾ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैडम प्लीज आप हमारी पूरी तुमकुर जिला के लोगों के बारे में कुछ बात कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. आज बहुत ही खुशी हो रही है. कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट तुमकुर में MEP का प्रोग्राम हो रहा है. इस प्रोग्राम में आने के लिए, इस प्रोग्राम में बैठने के लिए मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ और एक अच्छे अज़ाइम लेकर और अच्छे मकासद लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ. इस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जो शॉर्ट में इसका नाम MEP मशहूर हुआ है. और इस पार्टी का जो सिंबल है वो डायमंड है, जिसको हम हिंदी में हीरा कहते हैं. और ये सिंबल मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह आप सब अगर साथ देंगे, आप कामयाब होने में साथ रहेंगे, तो इस हीरे की रोशनी को हम भारत के कोने कोने में लेके जाएंगे. इसकी आवाज़ को भारत के कोने कोने में लेके जाएंगे. क्यों कि आज हमारे माशरे को सच्ची आवाज़ की बहुत ही ज़रूरत है. आज हमारे लोग, हमारे यूथ, हमारी औरतें काफ़ी हुकूक खो चुके हैं. उनको जो मिलना है सरकार से वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलते हैं, वो राइट्स उन्हें नहीं मिलते हैं. इस पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी क्यों रखा गया, कि इसका मुद्दा महिला एम्पावरमेंट पार्टी क्यों बनाया गया. ये नाम तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी रखा है, मगर हमारे भाई, हमारी बहनें, हमें साथ देने वाले सारे लोग भी इस पार्टी में शिरकत कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. क्यों? चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, दोनों के बगैर कोई गाड़ी नहीं चल सकती. ये दोनों पहिए होना बहुत ही ज़रूरी है. मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, हमारा क्या काम है. ये तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, इसमें हमारा क्या काम है. मैंने कहा कि 70 साल से आप लोग पार्टियां मनाते रहे, 70 साल से
आप लोग अनाउंसिंग करते रहे, 70 साल से आप औरतों से वोट लेते रहे, 70 साल से आप औरतों से काम करते रहे। आज एक औरत नेशनल पार्टी लाई है तो आपको क्या तकलीफ है? आप हमारा काम करो, हमें साथ दो, सपोर्ट दो, ये 70 साल का बदला अदा करो। और हमको बहुत सारी जगहों में सिर्फ हमसे काम लिया जाता है और हमारी इंसाफ हमको नहीं मिलती और हमारी ताकत हमें नहीं मिलती। जैसे अभी देश के अगर प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट, आप अच्छा गौर से सुनिए प्लीज, मैं सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने के लिए नहीं आई हूँ, तुमको हक बताने के लिए आई हूँ और तुमको हक सुनाने के लिए आई हूँ। अगर देश के प्रेसिडेंट तो हमारा डिमांड है कि वाइस प्रेसिडेंट औरत होना चाहिए। भारत में ऐसा कानून बनना चाहिए, भारत में ऐसा रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर देश का प्रेसिडेंट है तो देश की वाइस प्रेसिडेंट औरत होना चाहिए। अगर स्टेट के चीफ मिनिस्टर मर्द है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर औरत होना चाहिए। ये कानून को लागू करना चाहिए। अगर सियासत में 100 सीट है तो तकरीबन 40 सीट औरतों को देना चाहिए और औरतों को भी आगे आना चाहिए और उनके हुकूक लेना चाहिए। अगर HR मिनिस्टर मर्द है तो होम मिनिस्टर औरत को बनाइए, अगर होम मिनिस्टर मर्द है तो HR मिनिस्टर औरत को बनाइए। क्योंकि आज मैं देख रही थी काफी पोस्टर पॉलिटिक्स के लगे ही, आप भी गौर करिए, बहुत सारे पार्टियों के लगे ही, उसमें खाली फेस, 100 फेस ही खाली मर्दों के। क्या तुम्हें एक भी औरत समझ में नहीं आई जो देश के लिए काम कर सकती है कि उस पोस्टर में लगाते? क्या तुम्हें एक भी औरत अच्छी नजर नहीं आई कि उस पोस्टर में डालते? क्यों कि औरत को सिर्फ ये समझते हैं कि वो सिर्फ काम करेगी, वो ये गुलाम बन के रहेगी। ये गुलामी का जमाना नहीं है, ये आजादी का जमाना है। हम सबको राइट है, हम सबको हक है। यही महिला एम्पावरमेंट पार्टी का मकसद है। आगे चलकर हम औरतें, हम सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, क्योंकि एक औरत आपकी बेटी भी है, एक औरत आपकी बीवी भी है, एक औरत आपकी माँ भी है, एक औरत आपकी बहन भी है। अगर उन सबको हुकूक मिलेंगे तो समझ जाइए आप भी मुस्कुराएंगे, आपको भी हुकूक मिल गए। क्यों? आज जब लड़की पेट में होती है, जब स्कैनिंग निकाला जाता है, तो आपने कहीं सुना है कि किसी स्कैन निकालने के बाद लड़के को मारा है? कहीं पर आपने सुना है? कहीं पर भी नहीं सुना। क्यों? कि जैसे डॉक्टर कहती है कि लड़की है तो जैसे उनके चेहरों पे अंधेरा आ जाता है और बाप ये सोचता है कि मुझे बेटी क्यों पैदा हो रही है, मैं बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। रिश्तेदार भी ये सोचते हैं, क्या हुआ? बेटी बेटा नहीं हुआ, इस तरह से। मगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका बेटा आपके साथ नाइंसाफी कर सकता है, आपकी बेटी नहीं करती। आपके बेटे को आप नौकरी दिलाते ही, आपके बेटे को आप पढ़ाई पढ़ाते ही, आपके बेटे को सब कुछ करते ही, मगर वो बेटा तुमको बूढ़े होने के बाद ले जाकर ओल्ड एज हाउस में छोड़ देता है। मगर वही बेटी शोहर अगर मारता भी है तो माँ के लिए खाना छुपा के लाके खिलाती है। अगर ससुराल उसे आने के लिए नहीं देते, जब भी वो बाप की खिदमत करने के लिए छुप छुप के आ जाती है, तो क्यों बेटी से नाराज होते हो? आप आपकी बेटी को कलेक्टर बना के देखिए, आपके बेटे से अच्छे मार्क लाएगी। आपकी बेटी को आप इंजीनियर बना के देखिए, आपके बेटे से अच्छे मार्क लाएगी। और आपकी बेटी को आप डॉक्टर बनाइए, आपके बेटे से अच्छा मार्क लाएगी। आप सियासत में औरत आएगी, देश को सबसे बेहतर बनाएगी। और जहां भी औरत ने सियासत की है, बड़ी अच्छी सियासत की है। देश की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे,
जब तक इंदिरा गांधी थे देश को चलाते रहे, और जब तक कि वो खत्म नहीं हुई कोई दूसरे वो कुर्सी पर बैठ नहीं सके। क्यों? कि औरत का इतना मजबूती से चलाना होता है। उसके बाद तमिलनाडु में जयललिता जी थे, जब तक जयललिता जी ने हुकूमत को संभाला और कोई उस हुकूमत पे बैठ नहीं सका, यहाँ तक के मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। वैसे ही और भी जगहों पर औरतें काम कर रहे हैं मगर बहुत कम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक औरत जब चीजों को संभालती है तो मेरी बहनों वो बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उसको आता है, उसको मालूम है बेटे की फिक्र क्या है, उसको मालूम है एक औरत की फिक्र क्या है, उसको मालूम है एक घर की फिक्र क्या है, उसको मालूम है कि रास्तों को कैसे क्लीन रखा जाए, उसको मालूम है कि घर की सफाई कैसे की जाए। वैसे ही देश की गंदगी को भी वो सफाई कर सकती है, वैसे ही वो भारत की गंदगी को भी सफाई कर सकती है। जो औरत को कमजोर समझते हैं, मैं समझती हूं कि उनके अकल की कमी है। औरत कमजोर नहीं है, औरत को अल्लाह ने दिमाग दिया है। जैसा तुमको पैदा किया है वैसे ही अल्लाह ने दोनों को भी पैदा किया, आंख दिया है, सोचने की सलाहियत दी है, हाथ और पैर दिया है, और दोनों भी सब काम कर सकते हैं। मगर आज माशरे में हम खाली कहने को रह गए। कहीं पर कहते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट का काम कर दिया है, कहीं पर कहते हैं औरतों के लिए एक सुरक्षा कमेटी बना दी गई है, औरतों के लिए फुला बना दिया गया है। मैं जब समझूंगी कि जब औरतों को आप सीट देने लगे हो, मैं जब समझूंगी आप औरतों को पोस्ट देने लगो, मैं जब समझूंगी कि औरतों के लिए ये पार्टी काम करती है, तो औरतों को भी आगे लाने के लिए वो कोशिश करे। तो आज हमको बहुत जरूरत है कि भारत के अंदर एक पार्टी का आना, और उस पार्टी को चाहिए कि जो भी राजनीति के जो चेहरे बन चुके हैं, क्यों राजनीति जिसको कहते हैं तो हम 1 किलोमीटर भाग जाते हैं और कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, राजनीति अच्छी नहीं होती। अरे भाई, जब मैंने पार्टी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस भारत के अंदर मेरे मेंबर, मेरी औरतें 20 से 25 लाख औरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं, एम्पावरमेंट में आए हैं, काम किए हैं। जब एक दिन हमारी मीटिंग हुई, मैंने उन औरतों से पूछा कि हमको क्या काम करना चाहिए भारत में तब्दीली लाने के लिए। हम तो पैसे खर्च करते हैं, हम तो औरतों को इंसाफ दिलाने जाते हैं, हम तो औरतों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर जो है हम कुछ भी तब्दीली नहीं ला सकते। तो मुझे मेरे उन औरतों ने और मैं भी मशवरा दिया कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, एक नेशनल पार्टी लॉन्च करना चाहिए और उसको चलाना चाहिए, और उसकी हुकूमत को लेके आके हमको तब्दील करके दुनिया को बताना है कि औरत सब कुछ कर सकती है। तो सबने बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर कि औरत सब कुछ कर सकती है, और वो आगे भी आ गए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई भी इन कामों में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, और मैं फख्र हासिल करती हूँ कि हमारे भाई, सारे भाई हमारे जो है इस काम में मदद करने के लिए कोशिश करते हैं। और मैं जब ये पार्टी आ जाएगी, मर्दों के लिए, औरतों के लिए एक ही इंसाफ रहेगी, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, दलित के लिए, और भी कई मजहब क्यों ना हो, उनके लिए एक ही इंसाफ रहेगी। और जो आज हमारे साथ नाइंसाफी होती है, उस हक के लिए तुम सबको मुझे ना साथ देना जरूरी है। आज जो नाइंसाफी हमारे साथ होती है, बड़े बड़े बजट प्लान किए जाते हैं, घरों के प्लान किए जाते हैं, नलों के प्लान किए जाते हैं, वाटर के प्लान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? जब वोट की जरूरत होती है। बाद में खड्डा खोद के छोड़ दिए तो अगले 5 साल में बंद करने के लिए आते हैं। एक बार खोद दिए, इलेक्शन के शुरू होने से पहले, अरे यहाँ पाइप लग रहा है, यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ पर घर बना रहे हैं। बाद में इलेक्शन होने के बाद वो सारे काम खत्म। उसके बाद क्या करते हैं? 5 साल के बाद उसको बंद करने के लिए आते हैं, क्योंकि फिर भी वोट चाहिए। इस तरह से हम देख रहे हैं
और भारत के अंदर हमको तब्दीली लाना जरूरी है। गरीबों का जो फंड है उसके बारे में हम सब सवाल कर सकते हैं। और हमको गवर्नमेंट ने काफी, हमको सरकार ने क्या, हमें आर्टिकल जुडिशरी ने और 2005 में आरटीआई के तहत हमें सारे राइट दिया है कि हम मान सकते हैं कि ये बजट कहाँ गया है, ये बजट क्यों नहीं किया गया। बजट में मैं सुन रही थी कर्नाटक के लिए हाल में 2 लाख करोड़ जो है दिया गया, मगर पूछा जाता है कि 2 लाख करोड़ कहाँ गए, किसी के पास उसका सबूत नहीं होता है, कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि डर जाते हैं। और मुझे भी जब मैं यहाँ पर ये पार्टी को लेके आई, मुझे बहुत किया है और मुझे कहा गया कि एक औरत है, ऐसा कैसा चीफ मिनिस्टर के लिए कंटेस्ट कर सकती है, ऐसे 224 सीट पे तू कंटेस्ट कर सकती है, हम कुछ इलाके वहां तुमको खड़ना पड़ेगा, हम ऐसी बातें करेंगे उस पर चलेगा। मैंने एक जवाब दिया है कि ना मैं बिकने वाली हूँ, ना मैं मौत से डरूंगी, ना मैं डराने से घबराऊंगी। मुझे हक के लिए काम करना है, मैं करूंगी। और तुमको और मुझे जो पक्का करने वाला ऊपर है, हक के साथ होता है, वो जिसके साथ होता है दुनिया की सुपर पावर ताकतें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी दुनिया को उसने पैदा किया है, वही पालता है। मुजालिम को वो बर्दाश्त नहीं करता, देखता है जुल्म 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 कब तक देखेगा। एक दिन इंसाफ को लेकर आएगा और एक दिन इंसाफ वालों को साथ देगा। तो आज आप सब मेरे साथ जुड़ गए, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ। आज हमारे सरकार को सेंट्रल में, हमारी सरकार को चाइना घूमने के लिए टाइम है, अमेरिका घूमने के लिए टाइम है, हमारी सरकार को सब जगह घूमने के लिए टाइम है, मगर गरीबों को जाकर देखने के लिए बिल्कुल नहीं है। मगर देश के जो हालात गुजर रहे हैं उसके ऊपर देखने के लिए टाइम नहीं है। एडिट करके स्क्रीनों पे बता देते हैं क्या आज भी हमारे देश में कितने लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं, गरीबी के लिए तरस रहे हैं, ओढ़ने के लिए तरस रहे हैं, हर के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो आज हम जो है वर्ल्ड को घूम रहे हैं, मगर वोट तो इंडिया से चाहिए ना। वर्ल्ड तो वोट नहीं देगा, इंटरनेशनल तो वोट नहीं देगा, वोट तो जो है इंडिया से चाहिए। तो फिर इंडिया की मैं गुजारिश करूंगी कि सरकार को चाहिए कि इंडिया के हालत पे वो तवज्जो दे और बिना सोचे सरकार फैसले कर देती है, ऐसे फैसले कि इंसान हदरने लग जाता है। आजकल जो जीएसटी का प्रॉब्लम आया है, हम सबको पता है, आपको भी पता है। जो गरीब इंसान था, एक चाय पीता था, वो चाय पे भी 20 रुपये लग गए, इडली पर भी जीएसटी लग गई, नाश्ते पर भी लग गई, सारे चीजों के ऊपर लग गई। पब्लिक की परेशानी और भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम सरकार को बुरा भला नहीं कहते ही, सरकार को चाहिए कि कोई भी सरकार आए वो लोगों को सोचकर फैसला करे, लोगों के हालात को सोचकर फैसला करे, लोगों के फायदे को सोचकर फैसला करे। एक बार लोगों से पूछे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई मुजरिम, एग्जाम्पल जो है, जैसे अभी नोटबंदी का भी मामला आया, ऐसा मामला था कि अगर कोई गुनहगार था, कोई मुजरिम था, तो मुजरिम को पकड़ लेते, मुजरिम को सजा देते, कोर्ट है, जुडिशरी है, सारे चीजें हैं। ऐसा नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल, एक बस में, एक ट्रेन में पूरे पैसेंजर जा रहे हैं, उसमें एक गुनहगार बैठा है, वो गुनहगार को पकड़ना जरूरी है क्या पूरे ट्रेन को ही खत्म कर देना जरूरी है? इंसाफ की बात पूरे ट्रेन को खत्म करना नहीं है, गुनहगार को पकड़ना जरूरी है। गुनहगार को पकड़ने के लिए यह कहा गया कि सबको ही खत्म कर दो, सब चीजें ही खत्म कर दो। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं इसलिए बताती हूँ, सरकार है, उनके हाथ में अधिकार है, वो चेंज कर सकते हैं कानून को, मगर ऐसा कानून ना चेंज करे जिससे लोगों को तकलीफ आए। लोगों को क्या तकलीफ आई थी, क्या परेशानी आई थी, वो हम देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस हीरे की रोशनी को, इसके किरणों को, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ हर गरीब के जिंदगी में ये उजाला लाएगा और हर गरीब के जिंदगी में ये रोशनी लाएगा और खास कर से हमारे भारत के अंदर ये हीरा जो है रोशनी लाएगा।
और मैं आप सबसे ये दर्श देती हुई भी, ये स्पीच करती हुई भी ये वादा कर रही हूं, अगर आप सब मिलकर कर्नाटक में एमईपी की हुकूमत को लाने के लिए, एमईपी की सरकार को लाने के लिए इस बार मेरी मदद करेंगे, मैं 5 साल में वो काम करके बताऊंगी। सारा भारत देखता रहेगा कि किस तरह से दुनिया को सजाना है, किस तरह से स्टेट को सजाना है, किस तरह से हुकूक कैसे देना है। आज हमारे पास हमारे भारत के सैनिकों के लिए कोई प्लान नहीं है। आज हमारे पास इतनी पुलिस काम करती है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है। जो जान देकर इस देश के लिए कोशिश करती, उनके सैलरीज आप देखेंगे, उनके सैलरीज पे आप सोचेंगे, उनके बच्चे बच्चे भूखे रहते हैं। तो हमको चाहिए ऐसे प्लान बनाए कि हमारे जो भारत के जो सबसे ज्यादा हिफाजत के लिए काम करने वाली स्टाफ, भारत के सैनिक हो, भारत की पुलिस हो, भारत का डिपार्टमेंट हो, उनके लिए हमको 100% ज्यादा इंक्रीमेंट करना चाहिए, उनके लिए अच्छे आसानियां देना चाहिए। वक्त पड़े तो उन पर दबाव डालते ही, उनसे काम लेते ही, मगर उनकी सहूलत का कभी नहीं सोचते। क्यों? कि हमारे भारत में वही जो स्टाफ है जो भारत की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे काम करते हैं, जब वो इंतकाल हो जाते हैं तो उनके बच्चों को खाना नहीं होता है। उनकी फैमिली से एक बार आप इंटरव्यू लो, उनका नाम होने के लिए जब हो जाते हैं तो 1 साल लग जाता है। आज चीखते हैं डिजिटल इंडिया बनाना। अरे जब इतनी डिजिटल इंडिया बन गई है तो और हमारे जुडिशरी में एक केस आने के लिए 3 साल लगते हैं, एक हियरिंग होने के लिए 2 साल लगते हैं। क्यों जजेस को नहीं बढ़ाते? क्यों कोर्ट्स को नहीं बढ़ाते? क्यों डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े कोर्ट्स नहीं डालते? क्यों विलेजेस में नहीं डालते? ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पर देखकर। मैं ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए उन सब का शुक्र अदा करती हूँ और मैं ये गुजारिश करूंगी कि जो भी एमईपी की पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये सोच कर ज्वाइन करे, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो गरीब, कि हमको समाज की सेवा करना है। और मैंने जितने भी हमारे पास कैंडिडेट आए थे, हमको इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, मैं खुद बैठकर हर किसी को 10 मिनट 15 मिनट मेरे से जितना हो सका उतना टाइम देकर समझाई हूं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम अगर जीतेंगे तो क्या करना चाहिए और पब्लिक को कैसा टाइम देना चाहिए। नेता वो नहीं होता जो ग्लास बंद करके बंगले में बैठ जाए, नेता वो होता है जो गली गली में घूमकर लोगों की तकलीफ को देखे, जो गली गली में घूमकर लोगों को पूछे, देखे कि क्या इनकी तकलीफ है। अगर ऐसा नेता है तो कोई भी पार्टी हो तो साथ दो, कोई भी पार्टी हो तो जो। मुझे पार्टी से कोई मकसद नहीं, सीट से कोई मकसद नहीं, मुझे मेरे भारत के लोगों के लिए इंसाफ मकसद है, उनके लिए सच्चाई मकसद है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर अच्छा काम करती है, अगर कोई भी पार्टी का एक इंसान भी अगर अच्छा काम करता है उसको मुबारकबादी पेश करो, ताकि वो दूसरों के लिए नमूना बने। जो लोग राजनीति को लोगों को जुल्म करने का जरिया, जो लोग पॉलिटिक्स को लोगों को सताने का जरिया बनाते ही, उनको जरूर सबक सिखाइए, उनको जरूर सबक सिखाइए। और मैं जो है आपका शुक्र अदा करती हूँ, उसी तरह से जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए कोशिश की है उनका, और आप सब लोगों का जो है मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। बाज़ लोगों को मेरी हिंदी बात समझ में नहीं आई होंगी, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कि 1 महीने से 2 महीनों में मैं कन्नड़ा सीखकर आपके सामने आऊं। मगर मैंने हिम्मत से कदम को आगे बढ़ा लिया कि मैं जो भी जुबान बोलूं कोई ना कोई उनको समझाएगा, कोई ना कोई उनको बोलेगा, जरूर से जो है हमको हक बात को जो है आगे लेके जाना है। और बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आप सबका कि मैं दुआ करूंगी। मैं नेक्स्ट जब टुमकुर को आऊंगी तो हमारे यहाँ के टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी इतना मैं उम्मीद रखती हूँ कि जीते होंगे, और हम जो है जब कामयाब हो जाएंगे तो एक बेहतर काम समाज में करके हम लोगों को बताएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका।
ಸುಮಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷ, ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷ, ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷ, ದೇಶ ಮಾರೋ ಪಕ್ಷ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದು ಹೋದ್ವು. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯ ಮೂಲಕವೇ MEPಯ ವಜ್ರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೊಳಪನ್ನ ಬೀರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು मैडम। यहाँ पर जितने भी हैं इनको फिर और एक बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ये इसलिए कि आप इतना अच्छा, आप सबको जो जो तकलीफ है हर एक औरत के लिए और माँ, बहन, भाई और जितने भी हैं इन सब की ये तकलीफ दूर करने के लिए ये MEP पार्टी आपके सामने लेकर आए हैं। और आप इतना अच्छा आप सबको स्पीच दिया और आप सब इसके बारे में समझ गए होंगे। और इसको समझ के और कौन हर एक नेता भी आता रहता है और बात करता रहता है, लेकिन और गरीबों की तकलीफ कौन खिसा रहा है, कौन उसके बारे में ख्याल कर रहा है, उसका आप सब ध्यान रखना जरूरी है। और इसको आप सब ख्याल में रख के ये MEP पार्टी का हर एक की निगाह में भी ख्याल रखना जरूरी है। इसलिए आपको सबको शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? MEP ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ, MEP ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀ. ಈ ತರ ಶಕ್ತಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ MEP ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ MEP ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಹೇರಾ ಶೇಖ್ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು MEP ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬಾನಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಮಿಯಾನವನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर नौहरा शेख भारत को ट्रांसफॉर्म करने में निकली हैं। तो आज ये कारवां आ पहुंचा है टुमकुर। तो डॉक्टर नौहरा शेख मैडम से पहला सवाल हम करेंगे कि चिकबुल्लापुर के बाद आपने टुमकुर ही क्यों चूज़ किया? और माशाल्लाह टुमकुर आकर बहुत ही खुशी हुई और कंटिन्यूसली हमारे प्रोग्राम जारी हैं। और टुमकुर ही नहीं, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे प्रोग्राम होंगे कर्नाटक के। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के लोगों में आकर मिलकर। और आते ही मैंने बच्चों के एक स्कूल में मैं गई थी जहाँ पर गुरुजी चलाते हैं, जिसमें 10,000 बच्चे जो है जी सिद्धिगंगा स्वामी जी गुरुजी जो स्कूल चलाते हैं, वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि उसमें मुस्लिम बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे, सारे बच्चों को जो है वो अपना शेल्टर दिए हुए हैं। और वहाँ के बच्चों को भी देखकर 10,000 बच्चे जो पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी ये प्रोग्राम में आकर तो और भी बहुत ही अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह ये कंटिन्यूस पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में चलते रहेंगे। कल आपसे सवाल किया था चिकबुल्लापुर की जनता की क्या ज़रूरत है, आज हम वही सवाल दोहराएंगे। टुमकुर की जनता की अब क्या ज़रूरतें हैं? मुझे हर जनता के इंसाफ की ज़रूरत है। मैं हर जगह पर अपने वोट मांगने नहीं बल्कि उनके इंसाफ के लिए उनके सामने आके खड़कर यहाँ के आइनों को मैं क्लियर कर रही हूँ, ताकि जनता समझे कि हमको क्या करना चाहिए अपने देश के लिए। और इंशाअल्लाह वो समझकर मुझे साथ देंगे, मुझे वोट देंगे, मेरी पार्टी को जिताएंगे। मैं उनके लिए क्या करूँगी आइंदा के 5 सालों में मैं बता सकती हूँ। एक आखिरी सवाल, ये कारवां अब अगला कहाँ जाएगा? अभी डेट फिक्स होने के बाद और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे। अभी नेक्स्ट मेरे ख्याल से मैसूर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय